ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਫੋਕ ਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਵੈਸੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਤਾਉਲਾ ਈਸਾ ਖਿਲवी ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਡੀ ਔਰ ਕੈਸੇਟ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਸਟ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਾਤ ਪਏ। मैं समझदा कि अगर थोड़ा काम अच्छा होएगा तो अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में अच्छे लोग भी मौजूद ने जिन्हां दी वजह तो सारी दुनिया सरवाइव कर रही है, साडा मुल्क चल रहा है। इहदे विच सारे लुटेरे नहीं हैं, अच्छे लोग भी शामिल ने जिन्हां दी दुआवां नाल, जिन्हां दी मुहब्बत शफकत और इनायत नाल मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है और रहती दुनिया तक सलामत रहेगा। अल्लाह ऐसे लोगों दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੈਸਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀਡੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੁਸਤਜੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਏ ਤੋਂ ਨया ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਲੂਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਨਮਾਜ਼। हाँ कि मोमिन और काफिर में अगर कोई देखने वाला फर्क है तो वो नमाज ही है, बेशक और तो कोई नहीं। इसी तरह पाकिस्तानी शलवार कमीज च ना होवे तो पाकिस्तानी कौन कहेगा। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये नहीं थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये नहीं थे जो आज हैं। फ्रिज नहीं था, हम घड़े का पानी पीते, दरिया सिंध का पानी पी के हम जवान, कोई मिनरल वाटर नहीं होता था। अब दरिया सिंध अब भी बहता है हमारे यहाँ। तो वो ये होता था कि हम हमारे जो मुलाजिम होते थे वो मुख्तलिफ जानवरों पे जाके, बैल पे, गधे पे, ऊंट पे जाके पानी भर के लाते थे दरिया सिंध से। सही, वो बहता पानी, उसमें आज भी उसी तरह का वो है, वही हम पीते थे। उसको कोई हम गर्म नहीं करते थे, कोई उसमें कोई चीजें नहीं डालते, कुछ भी नहीं, वो पी के हमने जवान हुए। सही।
लेकिन और बगैर एसी के जवानों है। अच्छा, ये हालात बदला माशाल्लाह, तकरीबन 40 साल मैं रफ एस्टिमेटेड 40 साल तो बहुत हैं, ये तो पिछले 15-20 साल का शाखसाना है चलो, लेकिन सारा। आपको म्यूजिक सीन पे हाँ, अब इस दौरान हाँ, में दौर 40 साल। बदला, नस्ल बदली, रंग बदला, ढंग बदला, अंदाज बदला, लोग बदले, नहीं बदला, आपका म्यूजिक नहीं बदला, आपका तरीका नहीं बदला, आप उस वक्त भी हिट, आप आज भी हिट, क्या इसमें क्या बात क्या है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जल्ले शानहू का बड़ा एहसान है मुझ पे, तीसरी नस्ल है अब मुझे सुन रही है। हाँ जी, और बर्दाश्त कर ये रही है, यही तो बड़ी- कमाल यही तो कमाल ये है। अल्लाह जल्ले शानहू का कमाल है। और मैं समझता हूँ इसमें मेरा तो सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि मैंने उसमें मिलावट नहीं की। अच्छा, शायद ये भी वजह हो कि मैं जिस तरह था उसी तरह आज भी हूँ। बिल्कुल सही। जिस तरह मैंने एंटर हुआ उसी तरह मैं सोचता हूँ कि एग्जिट ले लूँ। अरे एग्जिट आपको लेने कोई देगा तो आप एग्जिट हाँ, लेंगे ना? ये मैंने 1-2 दफा कोशिश की, लेकिन मेरे चाहने वालों ने मुझे फिर इधर ले आए। अब मैं जरा चूंकि अब म्यूजिक का वो दौर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा है और अपनी सकाफत को संभाले हुए हैं। और जब तक हमारे आखिरी सांस है हम कोशिश करेंगे हमारे जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, वो इसी तरह हम बहसियत एक चौकीदार के, पहरेदार के, उसके लिए वो जो फराइज में शामिल बिल्कुल, हम अल्लाह करते ताला रहें। आपको इसकी तौफीक दे और कायम रखे। इस पे हुमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जल्दी से पूछ लें इससे पहले कि दूसरी दफा आपकी कॉल कट जाए। नहीं आती, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं खुश आयशा बहुत भाभी हूँ। के सब ड्रेसेस में से आपको ये ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका हुमा अताउल्लाह साहब से बात करवा दें। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। खुदा आपको हमेशा इसी तरह ठीक सलामत और सेहत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, खैर से हो। बहुत शुक्रिया हुमा, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि म्यूजिक बदल गया है, कभी आपने भी सोचा कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कोई कंप्यूटर, कोई इस तरह की चीज हम भी लगा लें, ऐसा कुछ modern हो है, जाए ऐसा थोड़ा? है फर्क कि जो हम एल्बम रिलीज करते हैं उधर यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, तो वहाँ जो कंपनी करते उसको वो कुछ चाहिए। तोड़ भन करके उसमें कोई रीमिक्स का चक्कर चला के वहाँ वो रिलीज कर रही है। सही। लेकिन मैं अपने तौर पे खुद को इस काबिल नहीं पाता कि मैं उसमें फिट हो जाऊं सही सिस्टम में। सही। तो अब भी जो मेरा तो मैं जिक्र किया मैंने, एल्बम आ रहा है उसमें भी वही फ्लूट, वही हारमोनियम, वही तबला, वही ढोलक। इसलिए कि वही हमारी एहसास है ना, हमें वही म्यूजिक अच्छा लगता है जो हमारा होता है, क्योंकि वही हमारी रूह की तार को छेड़ेगा, दिल की तार को ये छेड़ेगा। बात तो हमने तो बहुत समझाई है। अब मीडिया का काम है ये बात लोगों को, जो खास तौर पे जो नई नस्ल आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में हम किसी हद तक कामयाब है पूरी दुनिया में जाकर कि किसी की मेरी तरफ से सही। मैं कभी कभी पठान बन जाता हूँ। हाँ, किन बातों पे मतलब गुस्सा आ जाता है? बस कुछ रूटीन से हट के जो बात होती है तो गुस्सा आता है, लेकिन बहुत कम। सही। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मिजाजन जो चीज मिजाज के खिलाफ, और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा बार बार दोहराई जाए तो फिर यकीनन वो तकलीफ दे होती है फिर। सही। अच्छा, और किस तरह रिएक्ट करते हैं? एक दफा एक तो होता है शाउट कर दिया, चिल्ला दिया, बाजू का आदमी नहीं उस तरह कर सकता, फिर क्या करते मैं हैं? कोशिश करता हूँ हो तो खुद खामोश या उससे डिस्कनेक्ट हो जाऊं किसी तरह उस बंदे से, या सही। जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है। सही। तो फिर 2, 4, 5 दिन जब मैं उससे डिस्कनेक्ट रहता हूँ, यानी सोशल बाइकआउट कर लेता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि लाला नाराज है या ईसा खेल भी नाराज है, तो जाहिर है वो जो अपने अपने हैं। सही। ये लाला नाम जो आपको लाला, एक तो ये सकाफत का भी है लाला नाम, इसमें सकाफत बड़ी है, बड़े भाई को कहते हैं लाला कहते हैं। वहाँ हमारे इलाके में। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह शुरू हुआ कि अब सब लाला हाँ, सब लाला कहते अब तो मुझसे बड़े भी मुझे लाला कहते हैं। हैं। जबरदस्त। रुकेंगे हम, आप वापस आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेके साथ रहिएगा। मेरा अच्छा ये बताइएगा, ये जो तू तो याद रहेगी, मैंने जाके भेजा। अच्छा, ये जो इसमें था, तेन लेके जाना है मियाँ वाली,
वो जो एक अक्कड़ होती है ना आशिक वो का, तो एक है। वो भी तो होता है। कभी आपके अंदर वो जाती तौर पे भी आया है कि ना आपने कहा भाई लेके जाना है मियाँ वाली? कोशिश तो थी लेकिन पैदा नहीं कर सका। हाँ, उससे जितनी की हिम्मत थी उतनी मैंने उस सिस्टम के खिलाफ बगावत की, लेकिन इससे आगे वो मेरी अपनी ज़ात तक महदूद था। लेकिन जब मेरी वजह से किसी को कोई और डिस्टर्ब हो, मैंने ऐसा नहीं सोचा, न किया। सही। दुखी शख्सियत है वैसे, अंदरूनी तौर पे थोड़ा उदास जो लोग रहते हैं, उदास तबीयत है। उदास बनाते हैं हालात, मुसलसल महरूमियों ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आदत बनती। तो फिर कैसे फिट इन होते हैं लोगों में? दुनिया तो बड़ी तेज रफ्तार, बड़ी स्पीड, बड़े लोगों के मैं मामलात। अपने अंदाज से चल रहा हूँ, मुझे अपने इर्द गिर्द से कोई वो नहीं सरोकार। अपनी दुनिया में मस्त। अपनी दुनिया में मस्त हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है अपनी दुनिया में रह के। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो मेरे करीब हैं, वो मुझसे इस बात से बहुत नाराज होते हैं, बहुत बुरा मनाते हैं कि मैं खामोश रहता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं, या कोई ऐसे एक्शन नहीं करता जिससे कोई खास किस्म के जज्बात का इजहार हो। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अब आदी हो गया हूँ। आपको देख के ये यकीन आ जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसना होता है जिन्होंने वो गरजते नहीं है। यू आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो बंदा बहुत ये शो करे कि बहुत इंटेंस किस्म की गुफ्तगू उसकी, सिर्फ वही मोहब्बत करेगा, सिर्फ वही मंजिल को पाएगा। बाज़ औक़ात बड़े खामोश लोग जो होते हैं ज्यादा डीप होते हैं। हाँ बिल्कुल, डीप भी होते हैं, और वो एक अपने उसके साथ बड़े दयानतदार कह लो। पहला गाना कौन सा था, जिंदगी का पहला गाना जो आपने गाया हो बाकायदा? और फराज, जहाँ तक मुझे याद है कि वो हमारे स्कूल में एक दिन हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, तो मुझे जो याद पड़ता है कि सब बच्चे कुछ सुनाए, तो मैंने एक जो गाना था उस वक्त, अल्लाह गरी के रहमत करे, सलीम रजा साहब को, सही। बहुत अच्छा गाते थे, बहुत हमसे बहुत सीनियर, तो उनका एक गाना मशहूर था। कौन सा? वो मैंने सुना है, जो मुझे याद है मेरे शऊर में, जितनी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वो पहला गाना था जो मैंने दो चार बंदों में कौन सा था? सुनाया।